Hello everyone. Good evening to all. Hope you all are safe and healthy at your home and spending a wonderful time with your beautiful families. Uh, Dr. Twinkle Nakrani, Managing Director at Udan Junior, Bhavnagar. Uh, I'm here to welcome you all to the Power Talks 2020 organized by the TIE team of Ignited Educators from Bhavnagar, and thank you very much to the team TIE to consider me the proper speaker for this Power Talk. Now, let's come to the topic. My topic for today is teaching or torturing. Yeah, why teaching? What is a teacher? Simply, let's see to the definition given by the Google. A teacher is a person who helps students to acquire knowledge, competence, or virtue. Informally, the role of the teacher may be taken on by anyone. Here it is clearly mentioned the word anyone. Means the teacher can be anyone. It may be the professional teacher in the school, or the teacher can be as a parent, can be as a friend, can be a colleague. Teaching never ends. Okay, and now what is the teaching? Teaching is a process of attending to people's need, experiences, and feelings, and making specific interventions to help them learn particular things. This means we, as a teacher, we just have to help our children to acquire knowledge. We don't have to force them to acquire the knowledge. Okay, now what is the requirement to be a good teacher? Teacher means a school teacher or a parent, anything. Again, I am specifying. A teacher can be anyone. It can be the parents also, mom and dad also, friends also, siblings also, and our friends, colleagues. Any can. Now, what we need? First, we need to connect to the student. We need to know them. We need to know their needs. We need to know their fondings. We need to know their dislikings, anything. We need to understand them. We need to be a good and patient listener. To be a good teacher, the first quality is we need to be a very good listener. Only speaking is not everything. And when we are working with our children, हमको हमारे बच्चों की बात सुननी है, हमको उनको बोलने देना है. दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. ओके, नाउ एक बात मैं सब टीचर्स से पूछना चाहती हूँ. जब भी अपने बच्चे स्कूल पे आते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं. कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि दैट इज़ ऑल्सो फॉर्मल बिकॉज टीचर हैव अ लॉट ऑफ बर्डन टू फिनिश द करिकुलम, लॉट ऑफ बर्डन टू कंप्लीट द कोर्स, सिलेबस, एवरीथिंग. और उनको यही पड़ी है कि आज का जो भी प्लानिंग है वो ख़त्म होना चाहिए. लेकिन उसके अंदर हम लोग अपने बच्चों को वेलकम करना भूल जाते हैं. बाय हार्ट वी आर नॉट वेलकमिंग दैम. कभी कभी बच्चे आते हैं, जब स्कूल पे आते हैं, दूसरे दिन अगले दिन घर पे क्या क्या हुआ वो उनको सब कुछ टीचर से बात करनी है. बट टीचर के पास वो टाइम नहीं है. तो हमने कभी उनको सुना है जब वो बोलना चाहते हैं तो हमने कभी उनको एनकरेज किया है कि हाँ आप बोलो. उनके साथ में क्या हुआ, कुछ हुआ, अगले दिन क्या हुआ, आज वो क्या करने वाले हैं, अगर उनके कुछ अपकमिंग प्लान्स है, फॉर व्हाट दे आर वेरी एक्साइटेड. वी नीड टू लिसन टू दैम. वी शुड गिव स्पेस टू द स्टूडेंट्स चॉइस. क्लास के अंदर जब भी बच्चे आते हैं, हमें उनको स्पेस देनी है कि कभी कभी बच्चे का आज मूड नहीं है, चलो आज वो बच्चे बोलेंगे नो मैम आज पढ़ाई नहीं करनी है, आज चलो कुछ और करते हैं. तो टीचर को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. ओके, व्हाट यू वांट टू डू? यू वांट टू गो आउटसाइड? यू वांट टू गो इन द आउटडोर्स एंड प्ले? लेट्स गो. लेट्स स्किप टुडेज प्लानिंग. और उससे क्या होता है, हाँ, एक अच्छी टीचर किसको बोलते हैं कि जो अपने लेसन प्लानिंग के अंदर हम लोग अलग अलग तरीके से एक ही टॉपिक को पढ़ाते हैं. हम उसके प्रैक्टिकल्स भी अरेंज करते हैं. हम उनको आउटडोर्स थ्रू द गेम्स भी खिला सकते हैं, बोर्ड पे भी खिला सकते हैं, वर्कशीट के थ्रू खिलाते हैं. अगर आज बच्चे का लिखने का मन नहीं है तो टीचर इज़ वेरी स्मार्ट. वो उनको आउटडोर में खेलते खेलते भी वो चीज़ करा सकती है. लेकिन
बच्चों को चॉइस देनी ज़रूरी है कि वो क्या करना चाहते हैं उस दिन पे, और उसी टाइम से हम लोग रैंडम वर्क भी, कभी कभी ये भी हो सकता है कि चलो आज बच्चों का पढ़ाई का मूड नहीं है तो चलो आज स्किप कर देते हैं करिकुलम, वो हम लोग कल कर लेंगे, लेट्स गो एंड डू सम रैंडम वर्क। ठीक है। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि कभी क्लास में कोई बच्चा थोड़ा आता है तो थोड़ा अपसेट है, उसकी नींद ख़त्म नहीं हुई है, कुछ भी है, तो टीचर वो समझ नहीं पाती है और वो गुस्सा हो जाती है, तो दैट वी डोंट हैव टू डू इन द क्लास। कभी कभी बच्चा नॉन अटेंटिव हो जाता है, टॉकेटिव हो जाता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि भाई बच्चे को आज बात करने का मूड कर रहा है, टीचर सामने पढ़ा रही है, कुछ भी कर रही है, बोर्ड पे कुछ लिख रही है, एक्सप्लेन कर रही है, और बच्चा आजू बाजू में बातें करता रहता है, तो टीचर गुस्सा हो जाती है। लेकिन एक बार उसको थोड़ी सी स्पेस दे दो, वी आर अ टीचर, हम उनको फोर्स नहीं करना चाहते। और ये एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगी कि ये चीज़ सिर्फ छोटे बच्चों के साथ में नहीं होता है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में भी बच्चे के होता है। स्पेशली जब टीनेज में होते हैं बच्चे, तब पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को मैं ये बताना चाहूँगी कि तब उनके मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर मूड स्विंग्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर रिक्वायरमेंट्स, उनकी नीड्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम क्या कर लेते हैं, जैसे ही बच्चे क्लास में एंटर होते हैं हम उनको बोलते हैं चलो कम ऑन, ब्रिंग आउट योर नोटबुक्स, दिस टेक्स्ट बुक, एंड योर ब्रिंग आउट योर होमवर्क, एंड दिस इज़ नॉट वर्थ। बच्चे ये सब करने के लिए स्कूल पे नहीं आते हैं, उन ये सब ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। स्कूल इज़ द सेकेंड होम फॉर द चिल्ड्रन, और वहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी वार्मथ चाहिए, जो उनको घर पे मिलता है वही वार्मथ वो अपने टीचर से भी चाहते हैं कि वो भी उनको थोड़ा सा मिल जाए कभी कभी। वी नेवर आस्क देम व्हाट दे वांट टू लर्न टुडे। प्री स्कूल में तो ऐसे होता है कि चलो प्राइमरी और सेकेंडरी में समझ गए कि भाई सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, उनके टाइम टेबल्स होते हैं और सब्जेक्ट वाइज टीचर्स आते हैं। लेकिन प्री स्कूल के अंदर ज़्यादातर जनरली ऐसे ही होता है कि एक ही टीचर होती है जो सबको ही सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कभी कभी चलो बच्चों का आज ये मूड नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो ठीक है ना, वो बाद में करा लेंगे। क्यों उनको इतना फोर्स करना है। और कभी ये भी होता है कि कभी कभी ये भी होता है कि चलो ये सिलेबस हमको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, एग्जाम्स आर कमिंग नियर बाय, तो वी हैव टू कंप्लीट दिस कोर्स। तो हम उनको अदर वे से कन्विंस भी कर सकते हैं कि ओके यू वांट टू डू दिस, लेट्स डू दिस फर्स्ट एंड देन आफ्टर वी विल डू दैट। A good teacher should always be a teacher only in the class and forget all the disturbances। कभी ज़्यादातर जब लेडी टीचर होते हैं या कभी जेंट्स टीचर भी होते हैं, कोई भी टीचर होते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर टेंशन रहेगी। बट इट डजेंट मीन कि हम लोग वो सब अपने बच्चों पे उतारे। हमने ज़्यादा जब से देखा हुआ है दैट्स अ लाइक सर्कल, कि अगर बॉस ने अपने एम्प्लॉई का डांट दिया, वो घर जाके अपने मम्मी से झगड़ा करेगा, अपनी वाइफ से झगड़ा करेगा, वाइफ जाके अपने बच्चों को डांट देगी, बच्चा जाके किसी और को मार देगा, और वो बच्चा निकला उस बॉस का, वो बच्चे ने जाके घर पे बॉस के कंप्लेन कर दी, वापस से बॉस गुस्से में, तो ये सर्कल कभी कभी घूमता ही जाता है। तो वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट सर्कल। हमको अपने खुद को काम रखना है, पेशेंस रखना है। अपने बच्चों को बोलने दो। घर पे भी ये होता है कि मम्मी पापा भाई बहन सब बोलते जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे को कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन सही देखें ना तो छोटे बच्चों के पास में इतनी सारी बातें होती है, तो वो हमारे पास होता ही नहीं है कि हम उनको बोलने दें, ये पॉसिबल ही नहीं होता है। क्यों? थोड़ा सा अपने बच्चों को भी स्पेस दे दिया करो। अभी अपने बच्चों के साथ में क्लास के अंदर जब भी आया, घर पे आया, उसको पूछो वेदर ही इज़ विलिंग टू डू हिज होमवर्क और नॉट, वेदर ही इज़ विलिंग टू डू हिज राइटिंग वर्क और नॉट। यहाँ पे एक किस्सा मैं आपको सुनाना चाहूँगी। व्हेन आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड एंड आई रिमेंबर दैट सर्स नेम स्टिल, ही वॉज मिस्टर प्रकाश पटेल एंड ही वॉज टेकिंग अवर साइंस सब्जेक्ट. Now he was used to give us some notes in the class which we had to write down in our classes. Okay, write down in our notebooks. Now उस टाइम पे मेरा ज़्यादातर यही होता था कि चलो मैं ऐसी बच्ची थी कि भाई मुझे सुनने में मज़ा आता था, देखने में मज़ा आता था, प्रैक्टिकल्स में मज़ा आता था. I didn't like the written work. What he was used to do, he was giving me his notes. चलो इसमें से आप पूरे क्लास के बच्चों को लिखाओ. मैं पूरे क्लास के बच्चों को डिक्टेट करके लिखवाती थी. देन आफ्टर मुझे घर जाके वो करना था. अभी घर पे क्या होता था, मैंने तो वहाँ पे सब बच्चों को कॉपी ही कराया था. घर पे जाके मुझे भी ऐसे था कि चलो जल्दी जल्दी कॉपी कर ले. वहाँ पे मेरे पापा आ जाते थे, नहीं
आपको ये इसमें से देख के नहीं लिखना है, आपको ये याद करना है, सीखना है, समझना है, फिर अपने नोट्स बनाने हैं. दिस वॉज द प्रोसेस आई वॉज अंडरवेंट, और उसकी वजह से मेरा साइंस सब्जेक्ट वॉज अ क्वाइट गुड सब्जेक्ट. काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है क्लास के अंदर कि हम चलो बच्चों के लिए साथ में एक्टिविटी चेंज करा सकते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवा सकते हैं. बच्चों को गेम खेलनी है तो इस गेम के अंदर मेमोरी गेम के थ्रू हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, ट्रेजर हंट्स करवा सकते हैं, और इस तरह की काफ़ी सारी होती है जिससे बच्चों को ऐसा नहीं लगता है कि वी आर लर्निंग हियर, वी हैव टू सीट हियर फोर्सफुली एंड हमको यहाँ पे स्ट्रेट बैठना है, पेन और पेपर लिख के बस लिखते ही जाना है, इतना पोर्शन कंप्लीट करना ही है. तो ये सब टॉर्चरिंग बच्चों के साथ में करना, और वो भी खास करके अभी की जनरेशन के साथ में, इट इज़ नॉट वर्थ. हमको बच्चों को, ये जनरेशन बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उन बच्चों को जितना हम समझेंगे उतना ही वो हमें समझेंगे. ये जनरेशन ऐसी है कि जो हमको देख के सीखती है. तो सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन हमको करना है, सबसे पहले चेंज हमको हमारे अंदर लाना है. उनको टॉर्चर करने से कुछ नहीं होता है, उनको एक बार सोटी दिखा देने से कुछ नहीं होता है कि चलो वो ज़माना गया जब सोटी वागे चमचम ने विद्या वे धम धम. अभी वो सिनेरियो अभी यहाँ किसी भी स्कूल में आपको देखने को नहीं मिलेगा. अभी अगर सोटी लेना तो पेरेंट्स भी आ जाएंगे सोटी भी लेके, तो वो हमको ही आंसर देना चलता है. ठीक है, तो हम हमारे अंदर चेंज लाएंगे. खास करके मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूँगी, सुबह में जब बच्चे आते हैं वो थोड़ा सा लेट उठ के आते हैं तो दे आर वेरी लेजी एंड ऑल. और जब हम पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं ना कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा जल्दी उसको सुलाया करो, तो बोलेंगे हम लोग रात को इतना उसको सुलाने की कोशिश करते हैं, वो रात को सोता नहीं है. बट द फैक्ट इज़, आपने कभी वो सोने के लिए माहौल खड़ा किया? आप खुद रात को 1-2 बजे सोने के लिए बेडरूम में जाते हो. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर चाइल्ड टू स्लीप एट 9? उसके लिए आपको अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा. हाँ, कभी कभी हो जाता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, बट वी हैव टू डू समथिंग, वी हैव टू सॉल्व द सिचुएशन. हमारे घर के अंदर तो हमको ही करना पड़ेगा, नोबडी एल्स इज गोइंग टू कम. ओके, हम एज एन एजुकेटर मल्टीपल इंटेलिजेंस में बिलीव करते हैं, तो उसके हिसाब से वी ऑल नो कि बच्चों को पता है, हाँ हमको भी पता है कि भाई बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं. कोई बच्चा होता है वो इंट्रापर्सनल होता है, कोई इंटरपर्सनल होता है, कोई लिंग्विस्टिक होता है. तो हमको वो इंटेलिजेंस उसकी आइडेंटिफाई करनी है. एज ए टीचर्स वी कैन आइडेंटिफाई इजीली इन आवर क्लासेस, और वो इंटेलिजेंस जो भी है हम पेरेंट्स के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, और थ्रू दैट इंटेलिजेंस वी कैन मेक आवर चाइल्ड वेरी कॉन्फिडेंट एंड नॉलेजेबल. और हर एक बच्चा कहीं ना कहीं तो स्मार्ट होता ही है. नोबडी इज अनस्मार्ट इन दिस वर्ल्ड. कोई भी बच्चा होता है तो वो खुद से कर लेता है. अपने एक्टर एक्ट्रेसेस को ले ले, बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेसेस हमको बहुत ज़्यादा पसंद हैं. अगर हम उनकी ही बात करें तो बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने तो 5th-6th भी पास नहीं किया है, 5th-6th स्टैंडर्ड पास नहीं किया है. और कोई कोई भी है जो डॉक्टर्स है, साइकोलॉजिस्ट है, बहुत सारी अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं. दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल. लेकिन ये सब कहाँ से आता है? अगर चलो जो बच्चे ने 5th स्टैंडर्ड पास नहीं किया, उसको अगर घर में से यही टॉर्चरिंग चलता रहे, उसको स्कूल में से टॉर्चरिंग चलता रहे, यू आर डल, यू आर डफोर, यू आर डम, तो कैन यू इमेजिन वेयर दे कुड बी हियर नाउ. लेकिन उनको हर एक तरीके से सपोर्ट मिलता है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो दैट सपोर्ट वी नीड टू गिव देम. वी नेवर हैव टू फोर्स देम टू डू एनीथिंग. हमारे करिकुलम में बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें हैं. यहाँ पर करिकुलम की बात निकली है तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब अपना इस टाइम पे जब कोविड-19 की वजह से स्कूल्स लेट खुलेंगी तो बच्चों के पास भी थोड़ा सिलेबस ख़त्म करने के लिए टाइम कम होगा. तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि भाई हो सकता है अगर इफ़ पॉसिबल यू कैन स्किप सम टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस, यू कैन रिवाइज ऑल द सिलेबस एंड करिकुलम, एंड आपका प्लानिंग रिवाइज करके आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं, ना कि उनको बहुत ज़्यादा फोर्स करा के या बहुत ज़्यादा राइटिंग पोर्शन करा के उनको करो. दूसरी चीज़ की राइटिंग पोर्शन के अंदर भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बच्चों की एज के हिसाब से उनका जो डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट भी हमको समझना है.
2 साल के बच्चा के पास में यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप वो ABCD लिखना सीख जाए या इंग्लिश बोलना सीख जाए। हमारे गुजरात के अंदर मेनली ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई जब भी बच्चा स्कूल में जाना शुरू करता है ना, एट द एंड ऑफ द प्ले हाउस द पेरेंट्स विल कम टू द स्कूल एंड कीप ऑन कंप्लेनिंग कि ये अभी इंग्लिश में बात नहीं करता है, ये गुजराती में ही घर पे बात करता है, ये हिंदी में ही बोलता है, उसको इंग्लिश बोलना सिखाओ ना, उसको ABCD लिखना सिखाओ ना। अरे आपके बच्चे की एज है, बच्चा हर एक चीज़ को देख के सीखता है। आप अपने घर में इंग्लिश बोलना शुरू कर दो 24 आवर्स, और बच्चा अपने आप इंग्लिश ही बोलेगा। फॉरेन के अंदर क्यों बच्चे गुजराती नहीं सीखते, उनको क्यों इंग्लिश नहीं सिखाना पड़ता? ये सी चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है। और दूसरा कि हम जब छोटे थे तो हमने तो 5th स्टैंडर्ड के बाद में तो 5 ईयर्स के बाद में तो स्कूल ज्वाइन करी थी। उसके बाद में तो हमने लिखना पढ़ना शुरू किया था। ABCD हमने 5th स्टैंडर्ड के बाद में सीखी थी। तो क्यों हम अपने बच्चों के साथ में इतनी जल्दी कर रहे हैं? अभी कैसे हो गया है कि थोड़ा सा पसेसिव हो गए हैं हम लोग अपने बच्चों के लिए, उनके लिए ओवर केयरिंग हो गए, ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों का डेवलपमेंट हैम्पर कर रहे हैं। तो वो भी नाउ आस्क सम क्वेश्चन टू योर सेल्फ, डू आई लव माई स्टूडेंट्स और माई चाइल्ड? Am I concerned with their needs or feelings? Again repeating, this is for teachers and parents both. Please ask your questions to yourself. Do I express my love or concern to them? कितनी बार मैंने मेरे बच्चे को हग किया, कितनी बार मैंने उसको दिन में स्माइल दी? Am I able to be there when my child needs me? जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं मेरे बच्चे को बोलती हूँ कि चल आजा खेल ले, लेकिन तब तो मेरे बच्चे को नींद आ रही है, लेकिन नहीं तुझे मेरे साथ खेलना ही है। लेकिन जब मेरे बच्चे का मूड है तब आई एम बिजी विथ माई फोन, आई एम बिजी वॉचिंग माई TV सीरियल। इज इट गुड? वॉट शुड बी कॉम्प्रोमाइज, माई टायर्डनेस और हीज जॉय? मैं थक गई हूँ लेकिन मेरा बच्चा मेरे पास खेलना चाहता है, क्या करना है? डू आई एक्सेप्ट माई चाइल्ड्स एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़? मेरे बच्चे के थोड़े 10% कम आ गए क्लास में, मैंने एक्सेप्ट किया? नहीं किया। मेरा बच्चा ये कुछ चीज़ें कर रहा है, कुछ चीज़ें नहीं कर रहा है। आर्ट एंड क्राफ्ट में मेरा बच्चा सही नहीं है, पढ़ाई में सही है लेकिन दूसरा कुछ उसको आता ही नहीं है। ये डांसिंग तो बहुत अच्छा कर लेता है लेकिन सिंगिंग नहीं है। वाई? When did I give him a tight hug for the last time? When did I say I love you or you are special to me? मैंने कब बोला? अभी आप सबको you all must be wondering कि मैंने वर्ड टॉर्चरिंग यूज़ किया, क्यों इतना हार्श वर्ड? अगेन come to the Google definition. Torture means a action or practice of inflicting severe pains on someone as a punishment or in order to force them to do or say something. I think you all might be very clear with the word torture, why teaching or torturing. Let's take a pledge today. Let's not torture them with the burden of completing the syllabus. Let's not torture them for getting maximum marks and to stand on the top. Let's not torture them with the burden of fulfilling our dreams which we couldn't do in our life. मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहती थी लेकिन मैं नहीं बढ़ पाई, तो मेरा बच्चा मेरा ड्रीम पूरा करेगा। मुझे तो डॉक्टर ही बनना था लेकिन मेरे 10% मार्क कम आ गए, 5% मार्क कम आ गए, तो मैं नहीं बन पाई, मुझे कॉमर्स लेना पड़ा। मुझे तो इतनी पढ़ाई करनी थी लेकिन घर की सिचुएशन ऐसी थी तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई। मुझे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना था लेकिन मेरे पेरेंट्स का थिंकिंग अलग था, तो मुझे गुजराती मीडियम में पढ़ाया, तो मैं ये नहीं कर पाई। तो ये हमारे बच्चे हैं, वो हमारे ड्रीम फुलफिल करने की मशीन नहीं है। हम उनको by completing this power talk to the end, I would like to tell you everyone, give your children the freedom to choose their time of sleep, their time of play, their time of learn. Give them full freedom when they want to go anywhere, when they want to stay at home. और पेरेंट्स के तरीके से या टीचर के तरीके से वी आर वेरी स्मार्ट इनफ कि हम उनसे अपना जो भी मन में है वो सब करा ही लेते हैं। कैसे कराना है वो हम पे है।
Teaching or torturing is up to you. And at the end of the session, I would like to request you all, please stay home, stay safe, and keep your family happy. Thank you. Bye bye.